Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12 from T.S. Garewal's textbook 2023 edition, Accounting for Partnership Firms, Chapter 5, Retirement of a Partner. And in this video, we will study questions related to revaluation of assets and reassessment of liabilities. So let us see some questions related to this. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ कोई नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी हम 5th चैप्टर में आ गए हैं और इससे भी पहले 2 या उससे अधिक बार भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस हो चुका है. सो अभी भी हम इसे डिस्कस करेंगे और डिटेल में ही डिस्कस करेंगे. बट इफ़ यू आर स्टिल फाइंडिंग इट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट, आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द प्रीवियस वीडियोज़ वेयर which is dedicated to revaluation of assets and reassessment of liabilities. There also you can watch those videos and you can be benefited. Now it is just to recall all the things again, because whenever there is a reconstitution of a firm, I mean at the time of change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, revaluation account is a must. सो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ करना ही पड़ता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर है. सो क्योंकि अभी हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. उसका जर्नल एंट्री भी देखेंगे, और अगर क्वेश्चन में कहता है लेजर बनाने के लिए, सो वी विल डू दैट ऑल्सो. Question number 26. Sangeeta, Saroj and Shanti are partners, sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Shanti retired, and on the date of her retirement, following adjustments were agreed. The value of furniture is to be increased by rupees 12,000. The value of stock to be decreased by rupees 10,000. Machine of the book value rupees 50,000 is to be reduced by 10%. A provision for doubtful debts at the rate of 5% is to be created on debtors. Unrecorded investments worth rupees 10,000 is to be recorded, and a creditor of rupees 1,000 is not likely to be claimed, hence it is to be written back. Pass necessary journal entries. So for all the points A, B, C, D, E, F, separate journal entries can be made. But at the same time, combined entries or say compound entries can also be made, which is not wrong. So all the individual journal entries are already given here, you see. Fine, it's already given here. You can take advantage of your textbook itself. But let me explain it to you in detail, and we will be making a compound entries. Fine. So let us see how it is to be done, because compound entries will actually save your time. So journal for question number 26. We will see journal entries. Now revaluation of assets and liabilities, it means revaluation account. So revaluation account debit. Revaluation account में ही हमें डिक्रीज या इंक्रीज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है. और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है? जब कोई एसेट्स डिक्रीज हो रहा है या कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है. तो आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो उसमें देखिए पॉइंट बी में एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सा एसेट है? स्टॉक जो कि पॉइंट बी में लिखा हुआ है, स्टॉक इज डिक्रीजिंग बाय रुपीज 10,000. और फिर पॉइंट सी में भी है, मशीनरी भी डिक्रीज हो रहा है. मशीनरी जो कि 50,000 का था, उसको 10% रिड्यूस करना है हमें. सो 50,000 का 10% हो गया रुपीज 5,000. सो ये दो तो एसेट हैं जो डिक्रीज हुए. परंतु एक लायबिलिटी भी है जो कि पॉइंट डी में लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज मेंशन्ड इन पॉइंट डी, लेकिन डेटर्स नहीं दिया है. तो आप यहां मान लीजिए कि वो डेटर्स कितना है, 40,000 रुपीज का डेटर्स है. डेटर्स आर ऑफ रुपीज 40,000. उसका 5% कैलकुलेट करेंगे, आएगा रुपीज 2,000. बस इतना ही है जो
डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटी से रिलेटेड है। सो 17,000 रुपीज से रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है डेबिट हुआ। नरेशन बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब वो पॉइंट्स चुनेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर से, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट क्योंकि इंक्रीज इन फर्नीचर है एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय ₹12,000। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पॉइंट ई में लिखा हुआ है, फर्नीचर के बारे में पॉइंट ए में लिखा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं 10,000 के जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग। और एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर, क्रेडिटर भी डिक्रीज हो रहा है, ये लिखा हुआ है पॉइंट एफ में, एंड इट इज डिक्रीजिंग बाय ₹1,000। नाउ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, that is increase in asset or decrease in liabilities. So it is how much? 23,000 rupees. Decrease in liabilities. Now अब आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट 17,000 से डेबिट हुआ है और 23,000 से क्रेडिट हुआ है। इट मीन्स 6,000 रुपीज जो है वो क्रेडिट में ज्यादा है। सो हमें क्रेडिट बैलेंस मिलेगा 6,000 रुपीज का, एंड क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज अ प्रॉफिट। सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹6,000। सो उसकी एंट्री करते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 23,000 रुपीज क्रेडिट में है एंड 17,000 डेबिट में है। सो हमें डेबिट में और कितना करना पड़ेगा? 6,000 करना पड़ेगा। तो 6 plus 17,000 is 23,000. So it is profit. फाइन। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो प्रॉफिट रहता है और उसे हम तीनों पार्टनर को, यहाँ पर सारे पार्टनर्स को देंगे। टू संगीता एंड टू सरोज and to Shanti. In their old profit sharing ratio, that is 5:3:2. So 6,000 का half मतलब 3,000, then 1,800 and 1,200 being profit on revaluation. Now question number 27. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. B retired on 31st March 2023. On the date of his retirement, sum of the assets and liabilities appeared in the books as follows. Creditors ₹70,000, building ₹1 lakh, plant and machinery ₹40,000, stock of raw materials ₹20,000, stock of finished goods ₹30,000, and debtors ₹20,000. Following was agreed among the partners on B's retirement. So B के रिटायरमेंट में ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं. So let us see. Building to be appreciated by 20%, plant and machinery to be reduced by 10%. A provision of 5% on debtors is to be created for doubtful debts. So यहाँ debtors दिया हुआ 20,000 का. Stock of raw material is to be valued at ₹18,000 and finished goods at ₹35,000. An old computer previously written off was sold for ₹2,000 as a scrap. Firm had to pay ₹5,000 to an injured employee. Pass necessary journal entries to record the above adjustments and prepare the revaluation account. So solution 27. पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जर्नल एंट्री करेंगे, समझना आसान रहेगा थोड़ा. फाइन. सो हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है? जब एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं. सो डिफरेंस अमाउंट को ही हमें यहाँ लिखना है, इनिशियल और फाइनल अमाउंट को नहीं लिखना है.
सो फाइनल अकाउंट और इनिशियल अमाउंट के डिफरेंस को ही यहाँ लिखना है। सो पॉइंट ए में बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, देखिए देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इधर लिखना है हमें। सो बिल्डिंग्स आर इंक्रीजिंग बाय ₹20,000, फाइन 20%, 1 लाख का 20% 20,000। देन पॉइंट बी में प्लांट और मशीनरी डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज इन एसेट, सो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो रहा है ₹4,000 से, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का है। सो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। देन पॉइंट सी में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये पॉइंट सी है। डेटर्स 20,000 का है, उसका 5%, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, 1,000 इधर आएगा। देन पॉइंट डी में स्टॉक के बारे में डिस्कस किया गया है। सो बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट डी में डिस्कस हुआ है, 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। और टू स्टॉक हमें पॉइंट डी का इधर भी लिखना है, जो कि रॉ मटेरियल से संबंधित है, और रॉ मटेरियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 2,000 रुपीज से, 20,000 से कम होकर 18,000 हो गया है। देन पॉइंट ई में आ जाइए। सो बाय बैंक, ये ई पॉइंट है, 2,000 रुपीज कैश मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने एक पुराना कबाड़ का कंप्यूटर रद्दी में बेच दिया, तो उससे हमें 2,000 रुपीज मिला। सो एसेट बढ़ेगा, लेकिन एसेट कंप्यूटर है, कंप्यूटर डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही बुक से निकाला जा चुका है, इट इज अ रिटर्न ऑफ कंप्यूटर, सो दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, एंड एज अ रिजल्ट बैंक अकाउंट विल ओनली इंक्रीज बाई, बैंक और कैश भी लिख सकते हैं, बोथ आर एसेट्स। देन there is a workman compensation claim, so that is a liability, so to workman compensation पॉइंट एफ में है, 5,000 रुपीज का वर्कर ने क्लेम किया है, दैट मच ओनली, फाइन। अब हम इसे ऐड करेंगे, ये आ गया 27,000 रुपीज। सो इधर का बैलेंस कम है, तो इधर हमारे को एडजस्टमेंट फिगर आएगा ₹15,000 का। सो बिकॉज इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, एज ए रिजल्ट इट इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये तीनों पार्टनर को दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 2:2:1। सो पार्टनर ए, बी एंड सी, ब्रेक दिस, सो यू विल गेट ₹3,000, 6,000 एंड 6,000। अब इसे ही हमें जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। सो सिंपल है, आप 3 जर्नल एंट्री कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये 1 2 3 4, और फिर ये सब अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया दूसरी एंट्री। और तीसरी एंट्री में प्रॉफिट या लॉस को करना है। सो यहाँ हमारे को प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल, b's कैपिटल एंड c's कैपिटल। सो इट इज दैट सिंपल। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिख रहे हैं, क्या क्या लिखना है, डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटीज। सो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स डिक्रीज्ड बाय ₹2,000, and to workman compensation. That much only. प्रॉफिट या लॉस को अभी मत लिखिए, that will be a separate entry at last. Now इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 7, so 12,000 rupees. Being decrease in assets or increase in liabilities. अब वो एंट्री करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, जैसे कि बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, सो बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग बाय ₹20,000. देन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी इंक्रीज हो रहा है ₹5,000 से, और पुराने कंप्यूटर बेचने से बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है जो कि एसेट है, इट इज इंक्रीजिंग बाय ₹2,000.
बस इतना ही, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल ऑफ दिस इज ₹27,000. being increase in the value of assets. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 12,000 से, क्रेडिट हुआ है 27,000 से, मतलब 15,000 रुपीज क्रेडिट में ज्यादा है, दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया 15,000 रुपीज का. इसे हम सारे पार्टनर्स को देंगे, टू पार्टनर ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू पार्टनर बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू पार्टनर सी's कैपिटल अकाउंट. इनका ओल्ड रेशियो में देंगे विच इज 2:2:1. सो 6,000 एंड 3,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. Question number 28. Puneet, Ramit and Akshit were partners sharing profits equally. Akshit retired on 1st April 2023. Puneet and Ramit decided to continue the business and share profits in the ratio of 3:2. They also decided to give effect to the change in the value of assets and liabilities without changing their book values. Now ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज. मतलब रिवाइज्ड वैल्यू भी रहेगा और बुक वैल्यू भी है, लेकिन हमें जो नया बैलेंस शीट बनाना है उसमें बुक वैल्यू को लिखना है, रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं लिखना है. लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू होने के कारण जो प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है वो भी पार्टनर्स को मिलना चाहिए, इसका ये मतलब है. सो देखिए यहाँ क्या रिवाइज हो रहा है, द बुक वैल्यू ऑफ देयर बुक वैल्यू एंड देयर रिवाइज्ड वैल्यूज वेर एज फॉलोज. लैंड जिसका बुक वैल्यू 5,50,000 था अभी 8,50,000 का हो गया. बिल्डिंग 2,50,000 से कम होकर के 2,10,000 हो गया. कंप्यूटर्स 1 लाख से कम होकर के 70,000 हो गया. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स 5 लाख से कम होकर के 4 लाख हो गया. सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 से कम होकर के 60,000 हो गया. एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले था नहीं, अब कितने का हो गया, अब हो गया 5,000 रुपीज का. तो हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि फर्म को रिवाइज्ड वैल्यू से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट. सो यहां लैंड में रिवाइज्ड वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, ₹3 लाख से इंक्रीज हो रही है. फाइन. सो 3 लाख रुपीज का फर्म को फायदा है. एंड देन बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है 40,000 रुपीज का, सो इसको हम -40,000 लिखते हैं. कंप्यूटर्स भी डिक्रीज हो रहा है 30,000 से, सो -30,000 क्योंकि फर्म को नुकसान है इससे. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी डिक्रीज हो रहा है, सो -1 लाख रुपीज लिखते हैं. देन सन्ड्री क्रेडिटर 70,000 था अभी 60,000 हो गया, तो ये फायदा है. इट इज अ प्रॉफिट और गेन टू द फर्म बिकॉज अब 10,000 रुपीज कम देना है, सो ये फायदे की बात है. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले कुछ नहीं था, अब 5,000 है, सो ये लॉस है कंपनी के फर्म के लिए. सो दैट मच. नाउ इस तरीके से हमको फायदा और नुकसान देखना है. फायदा को हम प्लस में लिख रहे हैं और नुकसान जो है लॉस है उसको माइनस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹1,35,000 का प्रॉफिट. तो जो ट्रीटमेंट हमें करना है वो इस 1,35,000 से ही करना है और हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज. इसका मतलब यह है कि हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. फाइन. जब कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में क्वेश्चन कहे, एट दैट टाइम यू हैव टू पास अ जर्नल एंट्री which is based on sacrificing and gaining ratio. Sacrificers will be credited and gainers will be debited. So let us calculate that ratio first.
ओल्ड रेशियो है इनका इक्वली, दैट इज 1:1:1. अब कौन, हु रिटायर्ड? अक्षित रिटायर्ड, दिस पर्सन रिटायर्ड, सो पुनीत is to Ramit is equal to, new ratio is 3:2. ये तो है नहीं अब, so gaining ratio we will calculate is equal to new ratio minus old ratio for Puneet. New ratio is 3/5 minus old ratio is 1/3. LCM is 15, 9 minus 5, which is equal to 4/15. And for Ramit, 2/5 is the new ratio, minus 1/3 is the old ratio. LCM is 15, 6 minus 5, that is equal to 1/15. So gaining ratio is how much? 4:1, क्योंकि denominators are same, 15. Now profit on revaluation is equal to how much? Rupees 1,35,000. And who is the retiring partner? Akshit. Akshit's profit. So Akshit's profit is equal to 1,35,000 into 1/3, which is equal to rupees 45,000. Which is equal to rupees 45,000. So अक्षित के प्रॉफिट का ही बस हमें जर्नल एंट्री करना है. So this profit of Akshit will be contributed by Puneet and Ramit, continuing partners, in their gaining ratio, that is 4:1, because they are the gainers. So gainers capital account is always debited. So Puneet's capital account debited. How much? 45,000 into gaining ratio, so 4/5, so it is 36,000. उसी तरीके से Ramit's capital account 45,000 into 1/5 account debited, that is 9,000 rupees. To retiring partner Akshit, 1,35,000 है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और इसका हिस्सा है 1/3, सो इट इज 1,30,000. व्हाट्स दैट, हाउ मच? 45,000. यस. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी अंडरस्टूड. मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. एंड आई विल सजेस्ट यू टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक. If you find the video interesting and informative, please like the channel and share it with your friends. And do subscribe the channel. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.